Hello students, in this audio video, here we are going to discuss qualitative characteristics of accounting informations. But first let me tell you what are accounting informations. Accounting informations means the information provided by books of accounts of a concern. When we prepare books of account, journal, ledger, cash book, day book, trial balance, bank statement, final accounts, balance sheet, cash flow statement, fund flow statement, accounting ratios, etc. So different kinds of books of accounts and statements uh, are act as a source of information to different users. So these books of account is a type of information for this. That's why it is called accounting informations. Who are the main users of accounting informations that I would like to tell? First of all, owner, entrepreneur. Entrepreneur wants to know each and every time that what is the cash position, what is the stock position in a small organization, uh, what is the bank balance position, whether we need to borrow or not, what is my sales position, what is the position of cash, sell, credit sell, what is the position of collections, and at the end of the year, the entrepreneur wants to know whether the firm is giving him or her profit or not, or if he needed to, uh, what kind of attention or corrective measure is needed in business. ये इंफॉर्मेशन उसको एक ऑनर को पता चलता है. सेकंड होते हैं मनी लेंडर्स. द सेकंड यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर मनी लेंडर्स. A money lender who lends money to business house always wants to know what is the financial position in past of that firm last 2 3 financial years, and what is the future uh, position, budgeted positions for next 1 or 2 years of this concern. Only then assessing a healthy financial background, a loan project is passed. Third, creditors, those who supplies goods on credit, they also wants to know what is the track record of this firm in past, uh, of paying its creditors, uh, what is the range, average date of payment, what is the average payment period, uh, and how quickly they have been changing their creditors. ये सब स्टेटमेंट क्रेडिटर्स को पता लग जाता है पिछला अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिटेल में चेक करने से. फिर इन्वेस्टर्स, इफ़ यू आज के दिन में हम लोग चाहते हैं कि हम टाटा में, रिलायंस में, कोल इंडिया में, किसी भी कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वी आर इन्वेस्टर्स. तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करें? दोज वी आर एबल टू एसेस ओनली आफ्टर एसेसिंग द accounting statements of last 2 or 3 years of any concern, what dividend they have been declaring, how they have been annually growing in their business. After seeing all these things, we decide to invest in any company. Government is also a user of accounting information, because government wants to know whether each business house is maintaining books of account in a systematic manner or not, and whether they are paying taxes or not, or what amount of taxes shall be charged on them. That is all decided by the government only after looking into the books of accounts. So they are the I discussed with you what is accounting information and who are the users of accounting informations. So 4 5 users I discussed. Now let us come here. Qualitative characteristics of accounting information. First is reliability, Viswasniyata. This is a very important characteristics of accounting information. Accounting information should be recorded on the basis of documentary evidences which is available, verifiable and reliable. हाँ देखिए, बता रहा क्या कि जितने भी सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एकदम ऑथेंटिक प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर जिसका उस डॉक्यूमेंट्स पर जिसका साइन होना चाहिए, वो उसके साथ हर ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ रहना चाहिए. इससे क्या होगा, उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी. कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड है लेकिन उसका कोई
प्रूफ नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट है भी तो उस पर किसी जो ऑथराइज पर्सन उसका साइन नहीं है, उसका सिग्नेचर से मिलता नहीं, तो फिर उसकी जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो खराब हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। द अकाउंटिंग facts should be presented in an unbiased, impartial manner, as per this characteristics. Accounting information should be verifiable, neutral and faithful. मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते समय जो इनकम हम लोग दिखाते हैं, जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, सही होने चाहिए। बनावटी बढ़ा चढ़ा करके खर्चों को दिखाना, इनकम को कम करके दिखाना, सारी इनकम को नहीं दिखाना, इस तरह से आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन्स बना के दिखलाना, तो ये सब चीज़ अनबायस्ड और आर्टिफिशियल रिपोर्ट दिखलाएंगे तो करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप तैयार करके नहीं देंगे, तो धीरे धीरे अकाउंटेंसी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। रेलिवेंस, संदर्भ, all the accounting information which is useful and relevant should be included in the books of accounts। मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, जो उससे उस बिजनेस से रिलेटेड है, वेदर दे आर इन कैश और क्रेडिट, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड, दे मस्ट बी शोन देयर। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन एनी इंफॉर्मेशन is any information which may change the results of the business if disclosed। हाँ, उस बिजनेस से संबंधित सारे इनकम और एक्सपेंसेस को अगर आप सही से दिखलाते हो तो उस बिजनेस का सही पिक्चर आपके सामने आएगा, तो सही प्रॉफिट और लॉस का पता चलने से आपको अपने बिजनेस को ठीक ढंग से गाइड करने में मदद मिलेगा। एवरी सच इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अगर आप उसको दिखला देंगे तो ये भी ठीक बात नहीं। इससे क्या होगा, उस बिजनेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रति जो फेथ है लोगों का, वो खराब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इसलिए अपने बिजनेस से रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ों को दिखाएं, दूसरे बिजनेस या दूसरे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की चीज़ों को यहाँ बनावटीपन से दिखा करके फैक्ट्स को मिसलीडिंग ना करें। Understandability, accounting information is utilized by various parties such as customers, investors, government, workers, employees, analysts, economists, researchers। ये हो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारे। तो बोले इतने सारे लोग जो आपके अकाउंट्स के हिसाब किताब को देखेंगे, तो आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि ये सारे लोग जो कि अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं होंगे, फिर भी उसको देखने से नज़र समझ आना चाहिए। इतना सिंपल वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसकी डेब्ट इक्विटी कंडीशंस क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, एक्सेट्रा। ये इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग पढ़े वो कंफ्यूज हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर, कंसाइज, एग्जैक्ट एंड सुटेबल टू ऑल इट्स यूजर्स। सबको समझ में आने लायक होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, तुलनात्मक, मतलब आप जो हिसाब किताब बना के रखे हो, इस सिस्टम से बनाओ कि उसके अपने पिछले साल के हिसाब किताब से कंपेयर कर सको। ऐसा नहीं कि पिछले साल कैश बेसिस से बनाए थे, इस साल एक्रूअल बेसिस से बनाएंगे, फिर हर साल फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड भी चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे चेंजेस लाते रहोगे, कभी कैश बेसिस, कभी एक्रूअल बेसिस, कभी फाइनेंशियल ईयर चेंज करते रहोगे, यू शैल नॉट बी एबल टू कंपेयर your financial years। so you must have a fixity, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई हम एक्रूअल सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करें तो ईयर आफ्टर सेम तरीके से करें, सेम वे में करें। तो क्या होगा, तब एक साल का जो सारा इनकम एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, उसी वे में मेंटेन करेंगे, तो ईयर आफ्टर ईयर के जो इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, जो मैनेजरियल टूल्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, वो कंपेयर करके पास्ट से बिजनेस के प्रेजेंट को कंपेयर करके मैनेजर्स लोग प्रॉपर एक्शंस ले सके। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ एसेंशियल टू हैव एक्यूरेसी इन द कंपेरिजन मेथड्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एवरी ईयर। हर साल हिसाब किताब जो कंपेयर करते हैं पिछले सालों से, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, गलत पिक्चर नहीं दिखाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन अ कॉन्स्टेंट मैनर, मतलब कोई एक कंसिस्टेंट मैनर, किसी एक निश्चित तरीके से, सो दैट इट कैन बी ईजिली कंपेयर्ड ईयर आफ्टर ईयर, जिससे कि आप साल दर साल
अगर एक ही तरीके से हम कंपेयर करोगे तो सही कंपैरिजन होगा। तो ये हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के बारे में दिया कि कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कंपेरेबल कंडीशंस में होना चाहिए। थैंक यू, इसको समझिए।